Good morning, students. Today's factorization uh, it- of the identity x square plus a plus b x plus a into b. In this form, when the question is in this form, then the factorization will be x plus a in one bracket and another bracket x plus b. So this identity already you have learnt and we have solved the question, but that time question was this form and answer was in this form, and now question will be in this format and our answer will be in this format because this is the factor form. So now we try to understand by example, means by question number worksheet 7, question number first, x square plus 14x plus 33. So you compare this question with this. So here we are observing this is the same pattern of this, only a plus b. A plus b, instead of that what number is here? 14, and a into b, instead of a into b, 33. So we have to bring the two numbers, a and b means there are two numbers. Such a way, here I have written that by identity x square, this identity in every question we will write in this identity, and after that we will write our a plus b should be 14 for this question. A plus b, instead of a plus b, 14, and their product is, sum is 14 and their product should be 33. Now I am giving one idea, or you can understand trick. By this way you can choose a and b, means what will be that number so that the product is 33 and sum is 14. So this answer is hidden on the factorization of 33. Factorization of 33 means this you make the product of two numbers. You all possible you arrangement you can make. So one possible arrangement is 11 into 3, 33. Another arrangement is 33 into 1. So here in the rough means this side you make the all the arrangement of the product, and out of this product one will be our answer. One will be means here these numbers are there, one pair will be our answer. So here product in both the cases product is 33. So these both may be AB or these both may be AB. So for here we have to maintain 14 also. So can we add or subtract these two so that we can get 14? No, not possible. And here now think, here possible 11 and 3 if we add then we will get 14. इसका मतलब ये दिस इज आवर आंसर, ये आपका ए बन जाएगा, ये बी बन जाएगा, देन देयर प्रोडक्ट इज 33 एंड देयर सम इज 14. सो ये दिस मेथड इज नॉट गिवन इन योर बुक, ये आपके बुक में नहीं है. दैट इज वाई यू वॉच दिस video and you see this trick how to find the a and b. In this question only for finding a and b is important, rest answer is very easy. यहाँ आंसर लिखना बहुत इजी है. यदि आपको a और b मिल गया तो देन यू इमीडिएटली यू कैन राइट आंसर. नाउ पता चल गया 11 and 3, तो हियर वी विल राइट इन इमीडिएटली a plus b फॉर्म, तो 11 plus 3 and 11 into 3 and immediately we can write our answer. So answer will be in only 3 steps in every question, one expanded form and one their factor form. तो ये आंसर तुरंत आ जाएगा. ओनली चूज करना कि ए और बी क्या होगा सिलेक्शन, बस वही इंपॉर्टेंट है. नाउ सी दिस क्वेश्चन. क्वेश्चन इज वाई स्क्वायर माइनस वाई माइनस 6. दिस इज क्वेश्चन and our identity is same, we will write as it is. अब what is here our a plus b? Our a plus b should be minus 1 and their product should be minus 6, which I have written here. A plus b should be minus 1 and their product should be minus 6. Means here nothing means what number is here, we can write 1 minus 1. अब यहाँ समझो 6 का कितना तरीके से लिख सकते हैं. फैक्टर्स 3 2 जा 6 होता है, 6 1 जा 6 होता है, और तो नहीं होगा आई थिंक, और मोर पॉसिबल नहीं है. तो आपका आंसर या तो 3 2 होगा या तो 6 1 होगा. अब देखते हैं कि ये आंसर है कि ये आंसर है, मीन्स कौन सा नंबर इसमें से आंसर है. हमको लाना है 1, उसको एडिशन को लाना है 1. तो किसके एडिशन में 1 आएगा? इन दोनों के एडिशन में आ सकता है, लेकिन कैसे एडिशन करेंगे? एक दोनों के यदि प्लस ले लेंगे तो 3 + 2 5 हो जाएगा, और इसमें तो 7 हो रहा है, तो ये तो होगा ही नहीं. लेकिन इसमें यदि आपस में सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो -1 आ जाएगा. यहीं पे समझो अच्छे से, ये यदि समझ में आ गया
हाउ टू सेलेक्ट ए एंड बी, तो ये पूरा इजी हो जाएगा। और ये समझ में नहीं आया तो आपसे फिर ये क्वेश्चन बनेगा ही नहीं, क्योंकि यही इम्पॉर्टेंट है ए और बी को सेलेक्ट करना। फिर से समझो, ये जो ए क्रॉस बी का जो आंसर है, मतलब ये इसका ये 6 हो गया, -6 है, 33 है, आपको बस इसी को पहले देखना है। ये जो क्रॉस ये मतलब प्रोडक्ट फॉर्म है 6, उसका आप 2 नंबर का प्रोडक्ट लिख दो जितना तरीके से पॉसिबल है। 3 2 जा 6 होता है, 6 1 जा, और तो यहाँ पॉसिबल नहीं है, लिख लिए। अब इसमें से कोई एक पेयर 6 और 1 हो सकता है, 3 2, कोई एक पेयर आपका इसमें से आंसर होगा। यदि 6 और 1 लेते हैं तो दोनों को जोड़ेंगे तो भी नहीं आएगा। इफ़ यू सब्ट्रैक्ट देन आल्सो यू विल नॉट गेट -1। तो -1 कैसे आ सकता है? यदि इसको -3 ले लें और इसको +2 ले लें तो -1 आ जाएगा। तो हमारा ए क्या हो गया? किसी को भी आप ए ले सकते हो, 1 को भी ए ले सकते हो, दैट इज़ नॉट मैटर। तो ए हमारा -3 ले लेते हैं और बी 1 ले लेते हैं, तो वी विल गेट सॉरी ये 2 होगा, बी शुड बी 2, यहाँ 2 है ना, तो बी विल बी 2। तो आपका हो गया। बस नेक्स्ट टाइम यू राइट दिस क्वेश्चन -3 + 2 -1 आ गया, और -3 × 2 -6 आ गया। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसके बाद ये लिखे। अब अगले बार व्हाट विल बी द नेक्स्ट आंसर? y -3 और y + 2 हो गया आंसर। अब इसको फिर समझो, अब तीनों थर्ड भी बता रहा हूँ, सेम यही पैटर्न है। फिर ऐसे लिखे। अब यहाँ आ गए, व्हाट इज द सम? इन दोनों का सम क्या है? यहाँ कुछ नहीं है, मतलब 1, तो यहाँ मैं 1 लिख दिया हूँ, दोनों का सम 1। और व्हाट इज देयर प्रोडक्ट? माइनस साइन को भी लेना है एज इट इज, -72 आना चाहिए। दोनों का प्रोडक्ट क्या आना चाहिए? -72। तो ये जो है दिस इज कितने तरीके से लिख सकते हैं? तो 12 6 जा, और 3 × 24 भी। इसको एक एक को कम करते जाओ, 12 को कम करते जाओ तो इधर बढ़ते जाएगा। कोई भी पहले एक लिख लो और एक तरफ को कम करो, दूसरी तरफ बढ़ते जाएगा। तो 12 6 जा पहले मैं लिख लिया, तो ये इसको यदि मैं 3 कर दिया तो ये कितना हो जाएगा? 24। इफ आई डू दिस 2, इसको यदि मैं 2 कर दिया तो 36 इधर आना पड़ेगा, 1 कर दिया तो 72 आएगा। और एक और बचा है 8 9 जा भी तो होता है 72। आई थिंक एक और बच गया लग रहा है, 4 वाला भी बचा है। 4 इंटू यहाँ से एक कम किए तो ये 18 हो जाएगा, ये भी पॉसिबल है। तो इसमें इतने तरीके से पॉसिबल है, इतने तरीके से। में 72 कैन बी रिटेन 12 × 6, 3 × 24, 2 × 36, इतने तरीके से लिख सकते हैं। बट इसमें से कौन सा आंसर होगा? ये तो प्रोडक्ट आ गया 72, माइनस लाना है तो एक को नेगेटिव कर दो, एक को पॉजिटिव कर दो, दैट इज़ नॉट मैटर। अब हमको लाना है 1। अब इसमें से ध्यान से देखो कि इसके एडिशन सब्ट्रैक्शन से 1 आएगा। तो देखो 12 और 6 में तो नॉट पॉसिबल, बहुत दूर है ना, वो दोनों को ऐड करने से आएगा 1, ना सब्ट्रैक्ट करने से, इसमें भी बहुत दूर है। 236 में भी दूरी है, 1 और 72 तो पॉसिबल ही नहीं है। 8 और 9 अगल बगल है, इफ़ वी सब्ट्रैक्ट ईच अदर तो 1 आ जाएगा। तो आपका ए क्या होगा? 9 और बी हो जाएगा 8, क्योंकि हमको यहाँ क्या चाहिए? सॉरी, एक नेगेटिव लेना पड़ेगा। और बड़ा किसको लें? हमको सम 1 चाहिए ना, हम वी वांट इसका दोनों का सम पॉजिटिव होना चाहिए। तो एक को 9 को बड़ा को पॉजिटिव लेंगे और इसको -8 ले लेते हैं, ये तब आपका ये राइट होगा। ओके, तो 9 × 8 72 हो गया, और दोनों को ऐड करेंगे तो 1 होगा। तो दिस 9 + -8 यहाँ करेक्ट लिखा हूँ, देयर आई हैव रिटन ओनली 8 -8 होगा, और ये हो गया। तो आपका x + 9 और x ये आपका ये हो गया, ये भी हो गया, तो x + a और x माइनस जो वहाँ p है उसका वैल्यू हो गया, ये आंसर हो गया। तो योर होमवर्क इज क्वेश्चन नंबर 1 to क्वेश्चन नंबर 10। आप टुडे यू सॉल्व अप टिल क्वेश्चन नंबर 10, और इसको आप नोट डाउन कर लो कॉपी में, और ये प्रोसीजर को अच्छे से देखना, विच आई हैव एक्सप्लेन हाउ टू सेलेक्ट द, पहले ये सेलेक्ट करना है a × b, उसके बाद a + b का, इसके जो ये है उसी से आंसर आएगा, तो ए और बी ये हो जाएगा। ओके।